Alright everyone, 4 months to CAT. You have ignored this section till now. I know that. It's already July. And now you are staring at the VARC section thinking how to go from confused to confident. So you're in the right place. I have come to your rescue. I'm going to give you a step-by-step plan for the next 4 months and tell you how to make the most of these few days that are left. See, CAT VARC is not just about knowledge, it's about reading. It's about reading between the lines. It's about eliminating wisely. It's all about choosing. It's about presence of mind. So let's get started. And very soon you'll understand that yes, the battle is not completely lost. तुमसे हो पाएगा. Hey everyone, I know you haven't done anything yet in VARC, but let's get started. I'm going to give you a step-by-step guide on how to make the most of these few days that are left before CAT. अगर आपको ये भी नहीं करना है, you want to keep procrastinating, तो decision आपका है. You can decide to go for CAT 2026. So choose कर लो, you want to do it now, get started with me. और हाँ, picture अभी बाकी है. Everything is not yet lost. So let's get started. Without further ado, I'm going to give you a broad strategy overview. Broad strategy overview बोले तो you're starting now. What should your focus areas be? दो focus areas आपके हैं भाई. I'm talking strictly about VARC. Reading comprehension and verbal ability. Verbal ability बोले तो para jumbles, odd one out, para summary और हाँ para completion लिखना भूल गई हूँ वहां पर मैं, माफ कर देना उसके लिए. Reading comprehension 70% weightage. ओके सो ये दो फोकस एरियाज हैं आपके. कैसे करना है अब, हाउ टू गो अबाउट बोथ द एरियाज, बोथ द सेक्शंस. आई एम गोइंग टू ले आउट अ प्लान फॉर यू. यू जस्ट नीड टू फॉलो दैट. बाकी का सारा काम मैं आपको बना के दे रही हूँ. डेली प्रैक्टिस पे फोकस होना चाहिए. रेगुलर मॉक टेस्टिंग, रिव्यू एंड रिफ्लेक्शन. भाई आपने ना पहले बेसिक्स क्लियर करने. यू कैन गो एंड चेक माई प्रीवियस क्लासेस इफ यू आर अ पेड स्टूडेंट. एंड डेली प्रैक्टिस आपका उसके बाद शुरू होगा. हमारे ऐप पे भी जनरली वी हैव एप्लीकेशन क्लासेस इफ यू आर अ सब्सक्राइबर. अदरवाइज यू कैन डू योर ओन प्रैक्टिस. रेगुलर मॉक टेस्टिंग, कब मॉक स्टार्ट करना कब नहीं करना सब बताने जा रही हूं मैं. शिफ्ट फ्रॉम जस्ट रीडिंग to strategic comprehension and solving. You have to understand this that only reading is not going to help you. Reading for the sake of reading. मैम मैंने आज पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया, क्या पढ़ा बेटा ये तो याद नहीं है मुझे. So just reading for the heck of reading is not going to take you anywhere. Now you have to slow down. You have to read, understand, interpret, and actually solve. So when you do your daily reading, कितना करना है अभी बताऊंगी, लेकिन आपने जब रीडिंग करनी है तो उसमें क्या है, इफ यू गेट स्टक विथ एनी सेंटेंस, एनी पॉइंट, एनीथिंग दैट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, जस्ट आस्क चैट जीपीटी, भाई तू मुझे बता दे इसका मीनिंग क्या है. वो आपको सब कुछ एक्सप्लेन करके देगा विथ एग्जाम्पल्स एंड एवरीथिंग. दैट इज हाउ वी शुड यूज टेक्नोलॉजी टू अवर एडवांटेज. वो आप करना शुरू कर लो. मंथ 1. So I'm going to break this down into month 1, 2, 3 and 4. आप बस खाली ले लो ये सारे पॉइंट्स और शुरू हो जाओ. Foundation and reading discipline. Foundation building is very important because this is a language that you are dealing with. It's not QA, not the ILR कि भाई आपने formula रटा, practice की और आपने डाल लिया. No. This is language. So if I'm not very familiar with English, I'm not able to understand the nuances in English, it's going to be a problem for me जब मैं 4 passages handle करूंगी CAT के. राइट. रीडिंग डिसिप्लिन इंप्रूव करनी पड़ेगी आपको. डेली यू नीड टू डू अ लिटिल बिट ऑफ रीडिंग. सो अब आप देखो कि जो लोग ना पहले जिन लोगों ने स्टार्ट किया, लाइक मे बी अबाउट 4 months बैक, आई टोल्ड देम दैट ओके डेली 30 minutes रीडिंग करो, 20 minutes रीडिंग करो तो भी चलेगा. बट सिंस यू आर स्टार्टिंग नाउ, यू नीड टू एक्चुअली रोल अप योर स्लीव्स. अभी भी अगर आप सोचोगे कि नहीं 30 minutes तो नहीं हो सकता, 60 minutes तो नहीं हो सकता, then you are going to be disappointed. Plus it also depends on your level right now. You have to assess if your English is exceptionally weak and still you are starting now. पहले तो हिम्मत को सलाम. दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि you really are weak in English, you need to read for 60 minutes daily. So goal आपका क्या है? Build reading muscle, the stamina, the desire to read and understand question types. When I say question types, RC में भाई there are about 13 to 14 question types. Broadly देखा जाए तो 3 से 4 ही मिलेंगे आपको गूगल पे, but I break them down into 13, 14 types. वो एक एक टाइप का आपको समझना
what the question is saying is very important so that when you see it on the D-Day exam में फटाफट आपको click होगा. Then tasks में I have broken it down and I have given there daily reading of 30 to 60 minutes from diverse genre. आपको साइड में मैंने genre दे दिया है. सिर्फ हिंदू लेके मत बैठ जाना, सिर्फ गार्डियन लेके नहीं बैठना, सिर्फ इयॉन नहीं. Give yourself diverse reading and various genre, philosophy, science, history, sociology, politics, literature, AI, technology, बहुत सारी economics. Read actively. Try to summarize in 1 to 2 lines after each passage because you are starting late and you really need to do the hard work in the beginning. उसके बाद तो you can actually start skating ahead. ठीक है? Start a reading journal. Journal किस लिए? Main idea, tone, flow of the passage. ये 3 चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा important. So whenever you read a passage, maybe you can just note down these things. ये आप 15 से 20 दिन करो, then you'll automatically feel like weaning off of this thing. ठीक है? आरसी प्रैक्टिस आपको कैसे शुरू करनी है? 3 to 4 आरसी पैसेजेस ऑन ऑल्टरनेट डेज. बहुत ज्यादा बर्डन शुरू में नहीं दे रही हूं मैं. फोकस ऑन एक्यूरेसी, नॉट स्पीड येट. जब तक एक्यूरेसी नहीं आएगी क्या फायदा आपका स्पीड लेकर के, है ना? वीए कॉन्सेप्ट्स, स्टार्ट फोकसिंग ऑन द कॉन्सेप्ट, स्टार्ट बिल्डिंग. 3-4 ही तो टॉपिक्स हैं आपके वीए के. क्रिटिकल रीजनिंग आपको करना होगा बिकॉज दैट कम्स एज पार्ट ऑफ आरसी. बट बाकी के जो वीए टॉपिक्स हैं वो 3 से 4 फुद्दू टॉपिक्स हैं, आप आराम से कर सकते हो. अटेम्प्ट 2 to 3 वीए क्वेश्चंस डेली. All right, month 2, टेक्निक बिल्डिंग एंड एरर एनालिसिस. ना पहले मंथ में आपने देखा मैंने फाउंडेशन दिया, रीडिंग डिसिप्लिन दिया. कई लोगों को तो डिजायर ही नहीं होता रीड करने का. यू हैव टू डेवलप दैट फर्स्ट. टेक्निक बिल्डिंग एंड एरर एनालिसिस में गोल शुड बी टू सॉल्व स्मार्टर नॉट हार्डर. हम कोई गधे थोड़े हैं कि दिन रात सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे हैं विदाउट एक्चुअली साउंडिंग एंड अपियरिंग स्मार्ट. टास्क क्या है आपके? ब्रेक डाउन दिया है मैंने यहाँ पर. आरसी प्रैक्टिस पहले 3 पैसेजेस ऑन ऑल्टरनेट डेज था, अभी 3 पैसेजेस पर डे करोगे आप, और बिल्कुल करोगे अगर आपने जीतना है तो. स्टार्ट ट्रैकिंग क्वेश्चन टाइप्स. बहुत सारे क्वेश्चन टाइप्स जो मैंने बोला सब आपको पहचान में आना चाहिए. प्रैक्टिस एलिमिनेटिंग ऑप्शन स्मार्टली. क्यों? क्योंकि प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन इज गोइंग टू बी द एक्चुअल ब्रह्मास्त्र. उसके 15-16 कुछ ऐसे हैक्स हैं जो मैं पढ़ाती हूँ क्लासेस में. टेक दोज हैक्स एंड स्टार्ट एलिमिनेटिंग. आपके ना 2 ऑप्शंस उखड़ जाएंगे जल्दी, 2 ऑप्शंस बच जाएंगे. जब 2 ऑप्शंस बचते हैं फिर कैसे करना है वो आपको क्लास में मैं बता दूंगी. ठीक है? स्टार्ट वीए इन अर्नेस्ट. सो वीए में पैरा जंबल्स, ऑड वन आउट, शॉर्ट समरी, पैरा कंप्लीशन, चारों टॉपिक्स आपको, प्लस क्रिटिकल रीजनिंग थोड़ा बहुत आरसी के लिए करना, वो भी कर लेना आप. ठीक है? तो वीए प्रैक्टिस करना शुरू कर देना. स्मार्ट स्ट्रेटेजी में क्या है? प्लीज मेंटेन एन एरर लॉग. दिस इज समथिंग सो इंपॉर्टेंट एंड पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस. ठीक है? एरर लॉग में क्या होता है? आई डिड दिस, आई मेड दिस मिस्टेक, मेरे से ये वाला ना नेक्स्ट टाइम मुझे ध्यान रखना पड़ेगा. सो वो रहता है ऐसा ना, डेट डालो ऊपर में एंड देन द एरर लॉग. वीएआरसी में मैंने ये किया, इसमें ये मिस्टेक, नेक्स्ट टाइम डू नॉट रिपीट. इस तरह से आप करोगे विद इन 15 to 20 डेज यू विल सी योरसेल्फ वेरी डिसिप्लिन्ड एंड आपको एरर लॉग की आदत पड़ जाएगी. ओके, सॉल्व सेक्शनल टेस्ट वंस अ वीक. 40 मिनट्स का टेस्ट होता है. यू आर गोइंग टू रन द मैराथन ऑन द डी डे, 2 घंटे का. उसके लिए तो एब्सोल्युटली यू नीड प्रैक्टिस स्टेप वाइज. पहले 20 मिनट का टेस्ट होना चाहिए. टीबीटीज जिसको मैं कहती हूँ टाइम बाउंड टेस्ट, 20 मिनट का टाइमर लगाओ, एक कंपाइलेशन अपने आप को दो. विद इन दोस 20 मिनट्स ट्राई टू पिक द बेस्ट 6 to 7 क्वेश्चंस फ्रॉम द एंटायर लॉट. फिर 40 मिनट्स की आदत दो अपने आप को ताकि स्टैमिना थोड़ा और बिल्डअप हो. एंड देन 2 आवर्स का. इफ यू स्टार्ट रनिंग फॉर 2 आवर्स वाला ना, उसमें यू विल डेफिनेटली फॉल आउट ऑफ द लाइन. आपका ब्रेन आपको गोली मार देगा, बोलेगा प्लीज कहां दौड़ा रहे हो तुम मुझे इतना. ओके, सो सॉल्व सेक्शनल्स वंस अ वीक. प्रैक्टिस दो. टाइम योरसेल्फ फॉर आरसीज. आरसीज का जनरली फंडा ये होता है कि इन नवंबर या चलो बाय 20th और 24th नवंबर you should have that ability to take only 7 to 8 minutes per RC. वो प्रैक्टिस इजी नहीं है. अभी आप प्रैक्टिस शुरू करोगे आपको एक आरसी में 15 मिनट लगेंगे. यू हैव टू रिड्यूस दैट टाइम. वो रिड्यूस कैसे करना है? विद डिटर्मिनेशन एंड विद डिसिप्लिन एज आई सेड. मंथ 3 एप्लीकेशन प्लस टाइम्ड प्रैक्टिस. टाइम्ड प्रैक्टिस क्या है भाई? अभी तब से बोल रही हूं मैं, टाइमर लगाना है, टाइमर लगाना है. मंथ 3 में यू हैव टू एम्प इट अप. सिर्फ टाइम्ड हो जाना चाहिए तब हर चीज. या मैंने आपको दिया गोल शुड बी टू इंप्रूव एक्यूरेसी टोटली अंडर टाइम कंस्ट्रेंट्स, वरना कोई फायदा ही नहीं है ना. कैट इज एक्चुअली अबाउट टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजी. लोग सोचते हैं इट्स अबाउट नॉलेज. 99.999 परसेंटाइल किसी ने ले आकर के हमें बोला कि हाँ ठीक है, यू नो आई डिड इट बिकॉज आई वाज नॉलेजेबल. आई बेग टू डिफर. इट्स अबाउट स्ट्रेटेजी एंड टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो.
ठीक है। टास्क्स क्या है आपके, देखो आप मैंने यहाँ पे कैसे ब्रेक डाउन किया है। ऑल्टरनेट डेज बना लो, डे 1 एंड डे 2। डे 1 डे 2 एक दिन में आप क्या करोगे, फुल आरसी ड्रिल, 3 to 4 पैसेजेस। भाई कभी भी आप देखो, मैं आपको ये नहीं कह रही हूं कि आरसी ना 2 कर लो या 1 कर लो, नो, बिल्ड अप स्टैमिना इन आरसी। एक आरसी पैसेज तो कभी टाइम करो ही मत अपना, वो तो आप ऐसे ही कर लो, चना खाते हुए च्युइंगम खाते हुए ऐसे ही आप एक आरसी कर लो। बट मेनली यू हैव टू डू 3 to 4 आरसी पैसेजेस। 3 इज लाइक आइडियल, टाइम लगा करके करो, ठीक है, टाइमर। डे 2 में मिक्स्ड वीए सेट 10 to 15 क्वेश्चंस, एक दिन ये एक दिन वो, एक दिन ये एक दिन वो। अब टाइम नहीं निकालोगे तो फिर कब निकालोगे। एनालाइज मॉक्स, मॉक्स का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, डू नॉट लीव इट। टाइम पर पैसेज, टाइम पर क्वेश्चन, किसमें टाइम लगाया किसमें नहीं लगाया, व्हाई डिड यू गो रॉन्ग, बाकी सबका करेक्ट हुआ, आपका क्यों करेक्ट नहीं हुआ, इज दिस योर वीक एरिया, छोड़ देना चाहिए, ये सारी एनालिसिस मॉक में मिलेगा आपको, मॉक एनालिसिस में। और अगर मॉक्स को सही से हैंडल नहीं करोगे ना, देन मॉक्स विल ओवरवेलम यू। मॉक्स में फिर बड़ी प्रॉब्लम इसलिए हो जाती है बिकॉज आपको ना आदत नहीं होती उतने टाइम में जल्दी जल्दी करने का। Okay, so analysis करो and every mock, I mean with every mock you should see a little bit of improvement, but ये मत सोचना कि it's a magic wand, mocks आपको ना कुछ ऐसा कोई बड़ा fabulous सा score दे देगा। No, it just gives you reality and it gives you a laboratory. You can just do trial and error. प्रैक्टिस करो आप, मुझे इसमें ना ऐसे खेलना है, मुझे इसमें ऐसे खेलना है, ठीक है। सो स्टार्ट फुल लेंथ मॉक्स। इस वाले मंथ 3 में मैं दे रही हूँ 1 to 2 VRC sectionals, fine, and then you can start full length mocks once a week. ये frequency mocks की अगले महीने बढ़ जाएगी। ओके, फोकस एरियाज क्या होना चाहिए, टू reduce time per passage। आपने शुरू किया 15 से 20 मिनट पर पैसेज, बिल्कुल भी नहीं, नाउ यू हैव टू reduce it and then retain comprehension। ऐसा नहीं कि हाँ reduce कर दिया टाइम और कुछ याद ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। Eliminate weak question types, जो आपका फोटे नहीं है उस पे करना है या नहीं करना, ये आपको डिसाइड करना होगा। एंड देन स्ट्रेंथन द स्टैमिना फॉर 40 मिनट सिटिंग एंड 2 आवर सिटिंग। मंथ 4 फाइनल वाला आपका मॉक प्लस माइक्रो रिविजन प्लस मेंटल स्टैमिना। मेंटल स्टैमिना इज सो डैम इंपॉर्टेंट, ये नहीं है अगर तो आपका ब्रेन जो है ना, इट्स गोइंग टू शो यू द व्हाइट फ्लैग आफ्टर 2-3 आवर्स, बोलेगा अब तू आराम कर ले। What are you going to do? Goal will be final polishing and exam day readiness. Tasks क्या है आपके, अब तो मॉक्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, 2 to 3 मॉक्स पर वीक विथ एनालिसिस। ओके, देखना है एनालिसिस में आपका कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रहा है। टॉपिक रिवीजन, रिविजिट टफ जॉनरा पैसेजेस, छोटे छोटे पर्चियां बनाओ, नोट्स बनाओ, डेटा बेस्ड पैसेज है, कॉज इफेक्ट है, साइंटिफिक पैसेज में मैम ने कैसे समझाया था, एक्सपेरिमेंट है, व्हाई वाज द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड, व्हाट डिड दे फाइंड इन द एक्सपेरिमेंट, ये सारी चीजें ना कैसे हैंडल करना है। पीओई के जो टेक्निक्स हैं दोबारा उसको आप देख लो, रिवीजन उसमें चिट्स बनाओ, उसमें इनको क्या कहते हैं, फ्लैश कार्ड्स, फ्लैश कार्ड्स बनाना शुरू कर सकते हैं आप। रीडू द रॉन्ग वीए क्वेश्चंस। ओके, आरसी क्वेश्चंस देखो कि वो आपको करना है, कंसल्ट एन एजुकेटर नहीं करना है, यू कैन जस्ट डंप इट, नो प्रॉब्लम, वर्क ऑन द वीकेस्ट आरसी क्वेश्चन टाइप्स। वही वीकेस्ट आरसी क्वेश्चन टाइप्स देख के अगर आपको उसको रिजॉल्व करना है, टेक इट अप विथ कॉन्फिडेंस। नहीं करना है तो कोई बात नहीं, नोबडी इज गोइंग टू बॉदर यू कि भाई एक आध टाइप आपने छोड़ दिया तो दैट्स ओके। फाइनल पुश, मेक क्विक नोट्स, अभी जो मैंने बोला पर्चियां, छोटी छोटी फ्लैश कार्ड्स, रिवाइज टोन वर्ड्स, एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, मेन आइडिया टोन। ये तो अगर 2 क्वेश्चंस आए ना, बाउंस ऑन दीज क्वेश्चंस। और अगर आपने टोन वर्ड्स मास्टर कर लिए, आप सोच रहे हो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन अगर होगा, इफ यू डू दैट, ओह यू विल गेट अ बिग हाई। बहुत अच्छा लगता है जब 3 मार्क्स का एक एक्स्ट्रा कर लेते हो तो। ट्रांजिशन वर्ड्स, कैसे कैसे वर्ड्स पीजे में, ऑड वन आउट में, पैरा कंप्लीशन में यूज होते हैं, ये सब देख लो। और हाँ, reduce negative marking please by month 4. You are not a gambler that you're going to do guesswork. गेस कर रहे हैं, अरे बिहेव लाइक अ कॉन्करर, अटैक करो एंड टारगेट करके अटैक करो। That's it guys, thank you so much. So in the end I would like to say build up your confidence. 4 महीने का मैंने दे दिया है आपको ब्लूप्रिंट, गो अहेड विद दैट, यू कैन स्टिल डू इट। और मैं तो यही सोचती हूँ कि तुमसे ना हो पाएगा वाला जमाना चला गया है, तुमसे हो पाएगा, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ डिटर्मिन्ड यू आर।
Get started. आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अब मैं आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताता हूँ। ये डेटा जो आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है कि iQuanta यूट्यूब चैनल के 60% व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब ना करने का रीजन ये हो सकता है कि यार एनीवे जो ब्राउज फीड है उस पर तो वीडियो आ ही जाता है, बट सब्सक्राइब क्यों करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। iQuanta यूट्यूब चैनल का अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन देखोगे, यहाँ पे आपको बहुत सारी यूजफुल प्लेलिस्ट मिलेंगी। अगर आपका अरिथमेटिक वीक है तो ये आप अरिथमेटिक प्लेलिस्ट यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। ज्योमेट्री वीक है तो ज्योमेट्री प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। अलजेब्रा में प्रॉब्लम आ रहा है तो अलजेब्रा प्लेलिस्ट। एंड नॉट जस्ट दिस, अभी करंटली जो प्लेलिस्ट चल रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चंस का एंड RC 100 वाला प्लेलिस्ट जो शबाना मैम का है। ये सारे जो प्लेलिस्ट के वीडियोस होते हैं इन पे उतने ज्यादा व्यूज नहीं होते, बिकॉज ऑब्वियसली जो पढ़ने वाली जनता है वो बहुत कम है। बट अगर आप उनमें से एक हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रेगुलर बेस पे इन प्लेलिस्ट का वीडियो आता रहता है, आपकी फीड में आपको सबसे पहले दिखेगा। एंड नॉट जस्ट दिस, अब जो आने वाला टाइम है उसमें आपका कैट का फॉर्म आएगा, देन डिफरेंट एग्जाम्स के फॉर्म आएंगे, अलग अलग तरीके के नोटिफिकेशन आएंगे। जैसे ही कोई अपडेट कैट 25 से रिलेटेड आता है, सबसे पहले वो अपडेट आपको iQuanta यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।